हेलो बच्चा पार्टी, होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड। एंड आज हम करेंगे कंटिन्यू आर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके अंडर में आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट लॉरेंस फोर्स, अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड ऑफ कोर्स if you are talking about Fleming's left hand rule, we are obviously talking about DC motors. So let us start right away. Welcome to Science Arena. I am Monica. So पढ़ते हैं लॉरेंस फोर्स के बारे। In this setup what we see is a horseshoe magnet. So horseshoe magnet है तो इसके corresponding north and south poles होंगे, and north and south poles हैं तो magnetic fields automatically develop हो रहे हैं, right? And और क्या किया है हमने? हमने सस्पेंड किया है एक कंडक्टर जिसके थ्रू हम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर which is freely suspended between the two pole pieces experiencing magnetic field, so we see what? We see that it deflects. So इसे मिल रहा है एक force, it is experiencing a force. This force is called Lorentz force. Now Lorentz force को अब हम define करते हैं. So Lorentz force is the force experienced by a charge which is moving in a magnetic field in a direction other than the direction of magnetic field. So why can it not move in the direction of the magnetic field? If the current or the charge are moving in the same direction as the magnetic field, so naturally the force experienced by it becomes zero. So which is why. Alright, so let us understand some characteristics of and properties of these forces. What will happen if the current becomes zero? That is, there is no current flowing through the conductor. The force becomes zero, isn't it? Now what will happen if you reverse the direction of current? So अगर बैटरी को हम उल्टा कर दें, right? So current reverse हो जाएगा, and what will be the result? The result will be the force का direction becoming reversed as well. Now what will happen if the magnetic field is reversed? So magnet का north को बना देंगे south, south को बना देंगे north, हो गया magnetic field का direction reverse. So नतीजा force भी reverse हो जाएगा, right? And finally, last but not the least, Fleming's left hand rule is going to govern the direction of this force, right? So अब हम आते हैं बहुत ही important concept पे, which is about Fleming's left hand rule. Let us see what Fleming's left hand rule tells us. भाई बात हो रही है Fleming's left hand rule की, तो हमें ज़रूरत पड़ेगा हमारे लेफ्ट हैंड का. Now लेफ्ट हैंड में the thumb, the index finger and the middle finger are stretched perpendicular to each other. I hope you can see that, right? They are stretched mutually perpendicular to each other, where the index finger points in the direction of the magnetic field, the middle finger points in the direction of the current, then the direction in which the thumb points to is the direction of the force experienced by that current carrying conductor which has been placed in the magnetic field. नहीं? All right. So ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड. इंडेक्स फिंगर स्ट्रेच्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर स्ट्रेच्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ऑटोमेटिकली जहां हमारा ये थंब अलाइन करेगा खुद को, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच विल बी एक्सपीरियंस बाय दैट कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. बस इतना सही तो है. ऑल राइट, आगे बढ़े. अब ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगा? जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा, राइट? सो नाउ इफ वी हैव अ सिचुएशन वेयर इन we have more current passing through the conductor, it is going to experience bigger force. What about the other factors? अगर हमारा magnetic field strength ज़्यादा है, stronger magnets are in force, so naturally हमारा force experienced by the conductor will also be large. And finally, if the length of the conductor is large, naturally the force which it will experience will also be large. So ये रहे हमारे factors which influence the magnitude of the force. अब आ जाते हैं, हम ये समझते हैं कि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमारे घर के मोटर्स को दौड़ाता है. ये मोटर्स लगे कहाँ हैं?
वेल सबसे इम्पोर्टेंट तो है गर्मियों में हमारा पंखा. ऑल राइट. सो फैंस रन ऑन मोटर्स. सो जब भी मोटर की बात हो एक बार अपने फैन को इमेजिन कर लेना हाउ इट वर्क्स. वेल पंखा हमारा क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, लेफ्ट हैंड है ना. तो घर के पंखे को जब आप उतार के उसमें का मोटर निकाल के देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. वेल आई एम श्योर मम्मा से डर लगता है तो कोई और मोटर ले लेना. ऑल राइट. सो पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज आवर मोटर. ऑल राइट. सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. सो ये अरेंजमेंट अगर हम देखें इसके पास हम वापस से आएंगे अपने खुले हुए मोटर को देखने के लिए जब हम मोटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ चुके होंगे. सो लेट अस मूव ऑन टू द डायग्राम्स ऑफ मोटर डायरेक्टली. ये रहा खुलने के बाद हमारा मोटर का इंटरनल डायग्राम. ऑल राइट. हमारा मोटर कुछ ऐसा दिखेगा. राइट. सो अब इस ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अगर हमें बनाना हो, जो हमें बनाना होता है, हाउ ईजी वुड दैट बी. वेल लेट मी टेल यू, ये डायग्राम बनाना बड़ा ईजी है. मैम बना के तो दिखाओ, बातों से तो काम चलेगा नहीं. तो बनाते हैं हम अपना मोटर. ये कुछ कंपोनेंट्स होंगे हमारे डीसी मोटर में. तो शुरू करते हैं विद आर मैग्नेटिक पोल्स. राइट. सो ये रहे हमारे मैग्नेटिक पोल्स. सो हमारे पास है एक नॉर्थ और एक साउथ. सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब बिटवीन द पोल पीसेस वी आर गोइंग टू प्लेस एन आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल होता क्या है? वेल एक सिंपल सा कॉपर वाइंडिंग होता है. राइट. क्या मोटर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग प्रेजेंट होती है? नहीं, बहुत सारे वाइंडिंग्स होते हैं. बट फॉर द ईज ऑफ लर्निंग वी हैव जस्ट टेकन वन कॉपर वाइंडिंग विच इज कॉल्ड द आर्मेचर. ये आर्मेचर एक्चुअली प्रेजेंट होता है, ये कॉपर वाइंडिंग्स की जाती हैं ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. मीन्स अंदर में the whole set of windings has been developed on a soft iron core. तो ये मेरा रहा soft iron core. अब the two ends of the armature coil are attached to what we call as the split rings. This is called the split ring commutator. well ये कैसे बना है? ये बना है एक कॉपर रिंग से जिसे कर दिया है हमने स्प्लिट. एक हाफ लगाया, एक अटैच किया one part of the armature coil से and on the other side of the armature coil is the other half of the split ring. अब इस armature coil well एक और बताने वाली चीज ये है that this split ring is going to move with the armature coil when the armature coil is moving between the pole pieces. all right. now इस armature coil से को टच करता है the carbon brushes. ये रहा ब्रश. लेट अस कॉल इट ब्रश 2, ब्रश 1, स्प्लिट रिंग 1 एंड स्प्लिट रिंग 2. अब इस बेचारे कॉइल को क्यों हम छोड़ दें? वेल इसे भी नेम कर देते हैं ABCD. ऑल राइट. अब ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये करेंगे कनेक्ट हमारे एक्सटर्नल सर्किट के साथ. सो एक्सटर्नल सर्किट में क्या है? वेल हमारे स्विच के थ्रू होते हुए जा रहा है हमारा बैटरी कनेक्ट होने. वेल बैटरी कनेक्ट हो गया तो ये करेगा क्या? करंट देगा नेचुरली. सो व्हेन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू दिस सर्किट, मूव्स थ्रू द आर्मेचर कॉइल while present in the magnetic field, this armature coil starts to move in the magnetic field. Right. It starts to move because this is going to experience a force. The armature coil is going to experience a force, and as a result of which इसमें जो हमने शाफ्ट कनेक्ट किया हुआ है जिसमें हम अटैच करेंगे हमारा फैन. ऑल राइट. सो ये रहा हमारा फैन. अब ये फैन करेगा मूव और देगा हमें ठंडी ठंडी हवा. तो बन गया हमारा मोटर का डायग्राम. डीसी मोटर तैयार है. ऑल राइट. सो अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे और समझेंगे हर एक पार्ट का फंक्शन. सो आगे बढ़ते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारे डीसी मोटर का? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force and moves in a direction given by Fleming's left hand rule.
Also very important to mention that motor converts electrical energy into mechanical energy. So ये है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर. अब इतना लंबा चौड़ा तो हमने डेफिनेशन बना दिया, राइट, वर्किंग प्रिंसिपल का. अब इसे थोड़ा समझते हैं. तो समझने के लिए बेसिकली हमें करना होगा मोटर का डाइसेक्शन. अब समझ लेते हैं हर कंपोनेंट का फंक्शन. सो ये रहे हमारे पोल पीसेस जो करेंगे क्या, ये करेंगे क्रिएट द नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मूव करेगा हमारा आर्मेचर कॉइल. सो ये हो गया फंक्शन आर्मेचर कॉइल का, दैट इट मूव्स बिटवीन पोल पीसेस टू क्रिएट द नेसेसरी टॉर्क एज इट कंडक्ट्स द करंट थ्रू इटसेल्फ. सो आर्मेचर कॉइल कर क्या रहा है, वो अपने थ्रू करंट पास कर रहा है and therefore it experiences the torque as a result of being placed between magnetic pole pieces. Now moving down further to the soft iron core. Soft iron core क्या करता है, it concentrates all the magnetic field lines through itself and therefore it enhances the effectiveness of the motor. Now मूविंग डाउन फर्दर टू द स्प्लिट रिंग. अब ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है. सो अभी इमीडिएटली समझ नहीं आएगा, बट हम जैसे जैसे और एक्सप्लेन करेंगे मोटर के कॉन्सेप्ट को, ये क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सो द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज दैट इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ रोटेशन. अभी फिलहाल बहुत थियोरेटिकल है, इस पे हम वापस से आएंगे. ऑल राइट. सो एज हमने बताया था दैट द स्प्लिट रिंग्स मूव विद द आर्मेचर कॉइल, बट द कार्बन ब्रशेज आर जस्ट टचिंग द स्प्लिट रिंग्स ऑन आइदर साइड. दे डोंट मूव विद द आर्मेचर कॉइल. ऑल राइट. सो ये कार्बन ब्रशेज का फंक्शन क्या होता है, दे कनेक्ट द इंटरनल सर्किट to the external circuit. So they act as leads between the internal and the external circuit. तो ये तो हो गई. बैटरी की तो क्या ही कहनी है, इट इज गोइंग टू सप्लाई द नेसेसरी करंट, राइट, वी ऑल नो दैट. धीरे धीरे अब हम पहुंच गए हैं बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे. वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. सो हमने सारे कंपोनेंट्स मोटर के पढ़ लिए, हमने उनके फंक्शंस भी समझ लिए. अब समझते हैं ये कैसे मोटर वर्क करेगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ दीज फिगर्स. इफ यू मे हैव नोटिस्ड, जब हमने शुरुआत की डायग्राम ऑफ अ मोटर से, वी टॉक्ड अबाउट द एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोटर सर्किट, जहां हमारे पास था स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, कार्बन ब्रशेस, राइट. अगर हमारे सर्किट में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर नहीं होता, सिर्फ एक आर्मेचर है हमारे सर्किट में, तो हमारा सर्किट कैसे ऑपरेट कर रहा होता, इस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. तो इसकी बात करते हैं. ये रहा हमारा आर्मेचर कॉइल. नाउ दिस आर्मेचर कॉइल हैज़ बीन केप्ट बिटवीन टू पोल पीसेस, सो नेचुरल है, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, राइट. नाउ व्हेन आई कनेक्टेड टू अ बैटरी, सो करंट स्टार्ट हो जाता है सर्किट में, राइट. करंट स्टार्ट हो गया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, by the Fleming's left hand rule, this armature is going to experience a force, right. अब अगर इस आर्मेचर के इस पिंक आर्म को हम देखें, so using our left hand rule, Fleming's left hand rule, where we have the three fingers stretched out perpendicular to each other, जहाँ middle finger is in the direction of the current, the index finger is in the direction of the magnetic field, and finally the thumb will give us the direction of motion, right. So अगर हम current की डायरेक्शन में अपने मिडिल फिंगर को अरेंज करें, and my index finger is pointing in the direction of the magnetic field running from north to south, ये मेरा pink side of the armature is moving outwards, upwards, right. So ये आ रहा है ऊपर की तरफ, and what will happen to the other arm which is in white, वो भी कर लेते हैं लेफ्ट हैंड. सो फील्ड वही है, करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया है, नीचे की तरफ है. सो ये वाइट साइड ऑफ द आर्मेचर इज गोइंग टू मूव
इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइट. सो इसका नतीजा क्या होगा? वेल, द टू साइड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल moving in opposite directions is going to create a couple. And what about, let us say this is B C A D. Okay, I think I should use a different color. Let me call it, क्या कलर यूज करें जो दिखेगा? ऑल राइट, A B C D, राइट. सो ये जो हमारा आर्मेचर कॉइल है, इसका BC आर्म के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो भी तो है. वेल, AD भी है. इनका क्या होता है? वेल, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन BC एंड AD आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका फोर्स हो जाता है 0. सो इनको हमें कंसिडर ही नहीं करना है, राइट. अब व्हाट हैज हैपेंड? if the process continues, process of what? The process of movement of these arms of the armature coil. So कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, राइट. ये जो पिंक आर्म था, ये अब मूव करके इस साइड आ गया एंड ऑपोजिट साइड पे आ गया हमारा व्हाइट आर्म ऑफ द आर्मेचर कॉइल. नाउ यू कैन वेरी वेल सी, ये हो रहे हैं एंटेंगल हो रहे हैं, राइट. उसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है? नाउ इफ यू लुक एट द पिंक आर्म, इसमें अभी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड है. दैट मीन्स इस फिगर में भी हमने जो देखा था, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑल राइट, लेट मी ओपन देम साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पे पिंक आर्म में द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वॉज अपवर्ड, because of which the armature coil moved like this, right. Now that the pink arm is here, the direction of force which it is still experiencing is in the upward direction. ये वापस से अब इस साइड जाने वाला है, right. So what is the end result? Well, ये armature coil तो अपना rotation कभी complete ही नहीं कर रहा है. सो द होल पर्पस ऑफ द मोटर इज डिफीटेड, राइट. इसको लेके हम चल नहीं सकते. तो करना क्या होगा? अगर हमारे दूसरे आर्म को रोटेशन कंप्लीट करनी है तो क्या करना होगा? नेचुरली इस पिंक आर्म के डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा करना होगा, तभी तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज होगा. अब इस डायरेक्शन ऑफ करंट को हम उल्टा करेंगे कैसे? या तो हम अपनी बैटरी को उल्टा कर दें, नहीं तो हम पोल पीसेस को उल्टा कर दें. सो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस कैन कॉज अस टू हैव अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच विल नाउ गो इन द इनवर्ट डायरेक्शन, ताकि हमारा कॉइल अपना रोटेशन कंप्लीट कर सके, राइट. अब ये दोनों जो है अप्रोच, दैट मीन्स मैग्नेट्स इंटरचेंज करना और पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को बार बार चेंज करना, इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू. सो इसीलिए हमने इनकॉर्पोरेट किया हमारे सर्किट में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स को. अब हमारे इस आर्मेचर सर्किट के साथ एसोसिएट हो गया है एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या होता है? बेसिकली अ कॉपर रिंग हैज बीन डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. एक हाफ हमने कनेक्ट कर दिया एक साइड ऑफ द आर्मेचर कॉइल से, और दूसरी साइड को हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे साइड ऑफ द आर्मेचर कॉइल से. सो वी हैव टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. अब ये स्प्लिट रिंग के अगेंस्ट टच करते हैं कार्बन ब्रशेज. लेट अस से ये है B1 और ये है B2. ये स्प्लिट रिंग S1 है और ये स्प्लिट रिंग S2 है. सो ब्लू इज S2, पिंक इज S1. ये स्प्लिट रिंग्स हैं फिक्स्ड टू द एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल. सो अगर आर्मेचर कॉइल मूव करेगा तो उसके साथ मूव करेगा स्प्लिट रिंग. हाउएवर द कार्बन ब्रशेज आर जस्ट टचिंग अगेंस्ट S1 and S2, so they are not moving with the armature coil. इस सर्किट में बहुत क्लियरली विजिबल है that when the direction of current in AB is in the upward direction and that in CD is in the downward direction, at that point in time
split ring S1 is connected to the positive terminal and split ring S2 is connected to the negative terminal. जैसे जैसे रोटेशन आगे की तरफ बढ़ता है, well there is a change which happens. Let's see what happens. अब जब पोजीशन ऐसा आ जाता है wherein AB has turned to this position and CD now is on the other side, that means AB and CD का पोजीशन रिवर्स हो गया है. जस्ट चेक दिस, पहले AB इस साइड था, लेफ्ट साइड, अब AB इज ऑन द राइट साइड एंड CD हैज नाउ मूव्ड ऑन टू द लेफ्ट साइड. अब what we can very clearly see is the split ring S2, blue वाला split ring S2 था, S2 is now connected to the positive terminal and S1 is now connected to the negative terminal. इसका मतलब क्या है? well, इसका मतलब ये है कि हमारा करंट हो गया है इन्वर्ट. अब करंट इन्वर्ट हो गया है मतलब ए बी में अब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी हैड in the upward direction, and CD में direction of current is now in the upward direction. So result क्या होगा? Result होगा that the force these arms of the armature coil are now experiencing are also in the opposite direction. यानी कि AB जो ऊपर की तरफ जा रहा था अब जाएगा नीचे की तरफ. Fleming's left hand rule लगा के देख लेते हैं. So along the arm AB the current is in the downward direction. मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो इंडेक्स फिंगर हमारा पॉइंटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो ए बी मूव्स इन विच डायरेक्शन? इनसाइड, राइट, इट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड उसके साथ साथ सी डी मूव करेगा अपवर्ड. इसका मतलब हुआ ये कि अब हमारा आर्मेचर कॉइल करेगा रोटेशंस कंप्लीट और मूव करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो स्प्लिट रिंग ने तो अपना काम कर दिया है and its function is twofold. पहला फंक्शन ये है that the direction of current is inverted every half rotation. half rotation कैसे? well 180 degree turn हुआ है, so AB has moved from the left to the right, so that is why every half rotation the direction of current reverses. और ये काम किया है स्प्लिट रिंग ने. दूसरा काम ये किया है स्प्लिट रिंग ने that the coil now continues to move in one single direction. In this particular case it is continuing to maintain its movement, the motion in clockwise direction. As the rotation of the armature coil between the pole pieces continues, एक और चेंज आ रहा होता है इस सर्किट में, और वो क्या होता है? well, ये था हमारा आर्मेचर कॉइल in its initial position, and as it rotates to a position wherein armature coil becomes perpendicular to the direction of the magnetic field lines, we notice one thing. ये जो कार्बन ब्रशेस हैं इनका कांटेक्ट टूट जाता है विद द स्प्लिट रिंग्स. अब जैसे ही ये स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का कनेक्ट होता है खत्म, वेल सर्किट हमारी ब्रेक कर जाती है. दैट मीन्स द करंट स्टॉप्स. तो क्या इसकी वजह से हमारा मोटर बंद हो जाता है? वेल, ऐसा नहीं होता. और क्यों नहीं होता है? नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. सो अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन. याद है? So due to inertia of motion, this coil continues to move between the pole pieces, and ये जब तक पहुंच जाता है इस पोजीशन में जहां उसका कनेक्ट विद द कार्बन ब्रश रीएस्टैब्लिश हो जाता है, राइट. सो यहाँ हो गया है हमारा कार्बन ब्रशेस वापस से स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट, एंड हमारा करंट स्टार्ट्स टू फ्लो वंस अगेन, and this is going to facilitate the motion of the armature coil continuously between the pole pieces. इसके शाफ्ट से अगर हम कनेक्ट कर दें अपना फैन तो वेल वो फैन करेगा रोटेट. सो दिस इज आवर सर्किट ऑफ अ मोटर, एंड मोटर को कर लिया है हमने कंप्लीट. आगे का लेसन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ एसी जनरेटर, वहाँ एसी ट्रांसफार्मर,
वहाँ ट्रांसफॉर्मर। सो इनकी बातें हम करेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में। सो डू रिमेंबर टू जॉइन मी अगेन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।